Good afternoon, students. Today we are going to start new chapter. Yesterday we have finished planning, and the assignment which I had given to you, very few students have just done that. So you all just try to complete your work on time. So today we are going to start the new chapter, that is organizing. The new chapter organizing we are going to start today. In this chapter, what we have to study, these are the points which we have to study in this chapter. The first one, we have to study about the meaning of organization. Second, importance of organization. Third is process of organization, structure of organization, delegation and decentralization. In delegation, we have to study about the meaning of delegation, concept of delegation, importance and significance of delegation, and benefits and losses of delegation. Next, in decentralization, also we have to study the same things: the importance, the meaning, the value, the use, all the things of decentralization we have to study in this topic. So your first topic is meaning of organizing. So I'm just going to start with this. Organizing. What is the meaning of organizing? Organizing can be defined as a process that starts implementation of planning by specifying job positions and defining relationships and effectively distributing resources for attaining of organizational goal. Means organization can be defined. Organizing can be defined. Organizing को हम डिफाइन कर सकते हैं मीन्स जितनी भी जॉब स्पेसिफाइंग जॉब्स हैं, जितनी भी स्पेसिफाइंग जॉब्स हैं, उन सारी स्पेसिफाइंग जॉब्स को, जितनी भी जॉब है उन सबको स्पेसिफाई करना, अलग अलग करना. मीन्स हु इज असाइनिंग विच वर्क, किसको कौन सा वर्क असाइन किया जा रहा है, हु इज गोइंग टू असाइन द पर्टिकुलर वर्क. मीन्स वी कैन से इट इज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग various actions, various activities, bringing together physical, financial and other resources and stabilizing authority relationship among job positions. It means कि जो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस उसमें किस चीज का प्रोसेस है? इट्स अ प्रोसेस की आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना अलग अलग एक्टिविटीज को. फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज. सेकेंड, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज. एंड थर्ड, वो एक्टिविटीज दैट मे बी ह्यूमन, फिजिकल एक्टिविटीज, कैपिटल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज और बाकी जो रिसोर्सेज है उन सारे को एक साथ इकट्ठा करके उनमें वर्क को डिवाइड करना. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग फिर से बताते हैं, एक बार सुन लो. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, financial and other resources and stabilizing authority relationship among job positions. जो जॉब पोजिशंस है, पहला तो ये हो गया कि इट इज टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और उनको अलग अलग ग्रुप करना. एंड उसमें क्या है, जितने फिजिकल एक्टिविटीज हैं या फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं या बाकी रिसोर्सेज की जो भी एक्टिविटीज हैं, ऑल दैट एक्टिविटीज को क्या करना है, उनके अथॉरिटी रिलेशनशिप को, कि दैट हु इज गोइंग टू हैव विच अथॉरिटी. एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज डिवाइडिंग बाय द ऑर्गेनाइजिंग. एंड फर्स्ट क्या है कि उनकी अथॉरिटी क्या है, एंड सेकेंड देयर जॉब पोजिशन क्या है, मीन्स वर्क प्रोफाइल क्या है, दैट which authority they are having or which responsibilities they are having, who will report to whom. मतलब कोई भी वर्क करेगा, वो वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो किसके लिए आंसरेबल है, वो किसको आंसर करेगा जाकर के. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इन ऑर्गेनाइजिंग, once again I am telling you, in organizing some important points are there. First, identifying and grouping. First is identifying and
grouping activities. Okay, identifying and grouping activities. First thing is there, and second thing is there, stabilizing authority relationship among job position. तो जो जॉब पोजीशन, अलग अलग जॉब पोजीशन है, उन अलग अलग जॉब पोजीशन के बीच में आपस में रिलेशनशिप डेवलप करना, लाइक वन पीएन इज देयर, वन मैनेजर इज देयर, वन असिस्टेंट मैनेजर इज देयर, वन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर्सन आर देयर. सो उन सबके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हम कह सकते हैं, या उन सबके बीच में जो रिलेशंस हैं वो डेवलप करने का वर्क होता है ऑर्गेनाइजिंग. ओके, गॉट इट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. जब सारे लोगों के वर्क डिवाइड कर दिए जाते हैं, एवरी वंस वर्क इज डिवाइडेड, देन इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का. ऑर्गेनाइजेशन लीड टू स्पेशलाइजेशन एज द असाइन्ड वर्क इज परफॉर्म रेगुलरली बाय द कंसर्न पर्सन. मीन्स जो वर्क है दैट विल बी असाइन टू द कंसर्न पर्सन. किसी को भी, हर एक को अपना अपना वर्क करना है, एंड द वर्क इज अलॉटेड टू द कंसर्न पर्सन. जो एक स्पेशलाइज्ड है सिर्फ उसको वो वर्क दिया गया. एवरीवन इज नॉट गेटिंग द एवरी वर्क, so they are getting the work in which they are perfect. So in this way the organization can get the benefit of specialization. Next is clarity in working relationship. Clarity in working relationship means working and reporting relationship get clarified after proper organizing. If there is proper organizing, means the work of a different person, different work is divided, given to the different person according to their specialization. So in this way working and reporting relationship will be clarified. Working relationship means कौन वर्क करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा. These all relationships will be cleared, and जब ये तभी हो सकता है जब ऑर्गेनाइजिंग हो. With the help of organizing only it can be happen. Next is optimum utilization of resources. जब सबके वर्क अलग अलग डिवाइडेड हैं तो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. एक ही वर्क को एक से ज्यादा लोग नहीं करेंगे, तो द रिसोर्सेज विल बी मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइज की जा सकेंगे. मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क कैन बी डन देयर, मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी डन देयर. नेक्स्ट इज एडाप्शन टू चेंज. एडाप्शन टू चेंज मीन्स दैट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is always ready to change in external world. Means जो भी चेंजेस होने वाले हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, they can easily adopt that. कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, that change will be there. बिजनेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो चेंज किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही होंगे, तो इजीली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चेंज किया सकता है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंजेस किया सकते हैं, और बाद में उन चेंजेस को सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लेन किया जा सकता है. लेकिन एट द टाइम ऑफ चेंज पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस नहीं होंगे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता रहेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंजेस कर दिए जाएंगे जो कि इफेक्टेड होने वाला है. लाइक अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ा उसकी सेल्स पे और प्रोडक्शन पे. तो सेल और प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, जो सेल और प्रोडक्शन का जो यूनिट है, उस यूनिट को केवल अलर्ट कर दिया गया, उसमें जो चेंजेस करने की जरूरत पड़ी उनको चेंज कर दिया गया, बाकी जो भी प्रोसेस है उन प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए. सेल्स मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर ओनली, वहां पर उस लेवल पर जो चेंजेस हुए वो किए गए. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एक इजीली मैनेज्ड है, एक ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो किया जा रहा है, तो देयर मे बी नो चेंजेस, नो प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे कैन इजीली अडॉप्ट द चेंजेस. जो भी चेंजेस हैं उनको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट एन ऑर्गेनाइजेशन become better as all the job position and working relationship are clearly defined. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन पे जब सबके वर्क एंड जॉब पोजीशन क्लियर हैं, वर्किंग रिलेशनशिप्स आर क्लियर,
तो वहां पर क्या होगा, दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इजिली एडमिनिस्टर्ड, उसको आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मीन्स व्हेन जॉब्स आर असाइन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू अगर जॉब्स को असाइन किया गया है, एम्प्लॉयज लर्न एंड डेवलप इन एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट, तो जो भी वर्क एनवायरमेंट है वहां पर वो एक्चुअली उस वर्क को समझते हैं, उस वर्क को देखते हैं, और क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू है तो स्पेशलाइज्ड पर्सन इज वर्किंग द स्पेशलाइज्ड, तो उनका जो वर्क है वहां पर वो अपने एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट में वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है देन रिप्लिकेटेड एज द व्हेन रिक्वायर्ड लीडिंग टू ओपनिंग अ न्यू ब्रांचेस, अगर वो यहाँ पर आसानी से ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम to move forward, means they can open up their more branches. So these are the importance of organization, the meaning of organization and importance of organization. These two things are done, and for next we will just continue. Okay, till then just watch the video, and I'm just going to send the notes. No, copy that.